اور خبر تفصیل سے نوشہرہ راجوری کے پاس LOC کے دین گاؤں میں پاکستان کی جانب سے کی گئی فائرنگ میں ایک آرمی پورٹر شہید ہو گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب 3 آرمی پورٹر آرمی پوسٹ کی جانب راشن لے جا رہے تھے۔ اس دوران پاکستان نے فائرنگ شروع کر دی جس میں بودراج نامی پورٹر شدید زخمی ہو گیا۔ اگرچہ اسے فوری طور علاج کے لیے لے جایا گیا تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ ادھر ہندوستانی فوج نے بھی فائرنگ کا معقول جواب دیا۔ اس دوران آرمی حکام نے شہید ہوئے پورٹر کے اہل خانہ کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ 3 روز میں پاکستان کی جانب سے نوشہرہ سیکٹر میں یہ فائرنگ کا دوسرا واقعہ ہے۔ 3 آدمی جا رہے تھے نیچے سر کو سامان لے کے میرا پوسٹ پہ جا رہے تھے۔ کاٹمانڈو سے جب فینس گیٹ کراس کیا تو ٹرننگ موڑ آتا تو نیچے ڈون میں جب ہوئے تو دائنی طرف سے سر فائر آنا شروع ہو گیا۔ تو جو جس کا ڈیتھ ہوا سر یہ میرے آگے تھا، اس کے پیچھے میں تھا اور اس کے پیچھے یہ تھا سر۔ کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اپنی روزی روٹی کمانے گیا ہے، اس کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے اتنی شرمسار ہے میرے حساب سے، تو یہ پاکستان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ پاکستان کی جو روز کی کریانہ حرکت ہے، چھپ چھپ کے جو باہر کرنے، اس سے باز آنا چاہیے۔ بانڈی پورہ میں آج ولر ونٹیج پارک کے قریب بانڈی پورہ سری نگر سڑک پر ایک 20 کلو گرام وزنی IED کو ناکارہ بنا کر ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ فوج کی ایک پارٹی کو صبح 8 بجے کے قریب سڑک کے کنارے ریت میں چھپائی ہوئی بارودی سرنگ کا پتہ چلا، جس کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ نے اس IED کو ناکارہ بنایا۔ اس موقع پر بانڈی پورہ سری نگر سڑک پر ٹریفک کو کافی دیر تک روک کے رکھا گیا، جبکہ پولیس کے علاوہ فوج کے کئی اعلی افسران نے اس مقام کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا۔ ریاستی گورنر ستیہ پال ملک نے آج ریاست میں قائم مختلف یونیورسٹیوں کے وائس چانسلروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ جموں کے راج بھون میں منعقدہ اس میٹنگ میں یونیورسٹیوں کے کام کاج میں مزید بہتری لانے کے علاوہ دیگر کئی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں یونیورسٹیوں میں خالی اسامیوں کو وقت پر پر کرنے، امتحانات کے نتائج کو مقررہ مدت میں مشتہر کرنے اور داخلہ عمل کو آسان بنانے جیسے معاملات بھی زیر غور آئے۔ اس میٹنگ میں گورنر کے چند مشیروں کے علاوہ ریاست کے چیف سیکرٹری اور دیگر کئی اعلی افسران نے بھی شرکت کی۔ کشمیر کے موجودہ حالات پر دہلی میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد لون نے اس کانفرنس سے خطاب کیا۔ سجاد لون نے ریاست کے سیاسی، سلامتی اور اقتصادی امور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ Whatever measures you take, first of all, you see, let us talk about structural interventions. There will be no structural interventions. There seems to be a total jada space operational measures. Operational measures would be your army, would be your security forces, would be your police, and other things, which in a violent environment you would have to take recourse to. But then there is structural measure, which is non-violent, which is a dialogue. Jiske baare mein baat nahi, but then vast space, jo main reach out pe baat kar raha hu. There are many ways that you can reach out to the people in jail. Good governance is one of them. Aapne abhi ye jo baat ko bata rahe the, you were talking about these micro democratic institutions. Inko empower karna, inko fully empower karna, inko taakat dena. And also I would say, ki jo bacha kucha after all these erosions, jo bacha hai, if you can't restore it, don't erode it further. There is no space for that. Absolutely no space. اس کو رہنے دیجیے. It will do you no good. It will do no good to anyone. PDP کے ترجمان اعلیٰ رفیع احمد میر نے کہا کہ ان کی پارٹی پہلگام سے جواہر انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ اینڈ ونٹر سپورٹس کو منتقل کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف ہمہ گیر احتجاج کرے گی۔ پہلگام میں اس حوالے سے ایک احتجاجی مظاہرے کی قیادت کے دوران رفیع میر نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ انسٹیٹیوٹ کی پہلگام سے دوسری جگہ منتقلی ایک سازش کا حصہ ہے اور اس سازش کو پہلگام کے عوام کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ رفیع میر نے مزید کہا کہ اس طرح کی کسی بھی کوشش سے نہ صرف پہلگام کی سیاحت متاثر ہوگی بلکہ یہاں مقامی روزگار بھی کافی حد تک متاثر ہوگا۔ بعد میں SDM پہلگام کو بھی ایک میمورنڈم پیش کیا گیا۔ پہلے پرامن طور گورنمنٹ تک یہ بات پہنچائی پریس کے ذریعے، اپنے پارٹی کے ذریعے بھی، اور آج ہم نے ایک ٹوکن پروٹیسٹ کیا
हमने पुरअमन तरीके से आवाम की बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की और हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इंतज़ामिया तक हमारी बात पहुंच गई होगी और इसका खातिर खा रिस्पांस होगा और अगर ऐसा कोई आर्डर हुआ इसको कैंसिल किया जाएगा। लेकिन अगर हमें लगेगा कि हमारे रोज़गार को धक्का लगता है तो फिर हमें इसमें और कुछ तदाबीर करने पड़ेंगे। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पीरजादा मोहम्मद सईद ने कहा है कि कांग्रेस ने किसी जमात के साथ क़ब्ल इंतखाबात के इत्तेहाद के बारे में हतमी फैसला नहीं लिया है, जबकि इस वक्त सबसे बड़ी तरजीह जमात को मजीद तक़वियत बख्शना है। अनंतनाग के दमहाल कोकरनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद पीरजादा ने इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर जम्मू कश्मीर की सालमियत और खुसूसी पोजीशन को खत्म करने का भी इल्जाम लगाया। कारकुनों से खिताब के दौरान पीरजादा ने कहा कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर रियासत की आवाम को पहले ही धोखा दिया और अब दोनों जमातें गुमराहकुन बयानबाजियों से काम ले रहे हैं। मुख्तलिफ कमेटी बनाई, हमने इंटरलॉकर्स में भेज दिए यहाँ। हमने बड़ी कोशिश की थी कि अब बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने हमेशा उसमें रोड़ाहट की। लेकिन हम कहते थे, आज भी हम कहते हैं बीजेपी को कि आप करो, हम मदद करेंगे। लेकिन उनका अपना मंशूर है 370 को ख़त्म करना, आर्टिकल 35A को ख़त्म करना, ये उनका मशहूर है। बिजली की आंख मचोली मुसलसल कटौती और उसकी अदम दस्तियाबी के खिलाफ आज कुलगाम में मुकम्मल हड़ताल रही। तमाम कारोबारी मराकज बंद रहे, जबकि ट्रैफिक भी मुअत्तल रही। ऑल पार्टीज, अवामी बहबूद कमेटी, ट्रेडर्स फेडरेशन, ट्रांसपोर्टर्स, सियासी व गैर सियासी तंजीमों की जानिब से दी गई हड़ताल कॉल का असर देखने को मिला। चिल्ले कलां की ठिठुरती हुई सर्दी में कस्बे कुलगाम और उसके मुल्हिका इलाकों में बिजली की अदम दस्तियाबी से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अवामी मुश्किलात का इजाला करने में इंतजामिया बेबस नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, CPIM, PDP समेत दीगर जमातों से ताल्लुक रखने वाले लीडरान और वर्करों ने भी हड़ताली कॉल की न सिर्फ हिमायत की बल्कि एहतजाजी धरना दिया। इस दौरान DC ऑफिस के मेन गेट को एहतजाजी मुजाहिरीन ने तालाबंद कर दिया, जबकि बाद में इंतजामिया को भी एक याददाश्त पेश की गई। दहाइयों से पहली बार देखा कि चंद घंटे वो भी दिन में हमको बिजली मिलती है, शाम के वक्त से ये गायब रहते हैं। हमने बारहा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता किया, वहां पर उन्होंने एक्शन को बुलाया, PDD एक्शन को उन्होंने एश्योरेंस दी, 2-3 दिन रहा, फिर वही। अगर आज हमारा मसला हल नहीं हुआ इंशाल्लाह और हमारी ये तहरीक यहाँ से चलेगी और जम्मू में इसका इख्तिताम। सर, हम यही कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ के बहुत से रिसोर्स है जो यूटिलाइज होते हैं, बाहर यूटिलाइज करते हैं। हमें यहाँ बिजली नहीं मिल रही है। आज बहुत -7, -8 डिग्री है, उतनी चिल्ली विंटर है, हमें बिजली नहीं मिल रही है। 1-2 घंटे मिल रहे हैं टोटल। अगर यहाँ देखेंगे जो बिजली डिपार्टमेंट का जो फीस होता है वो बराबर आता है, लेकिन हम वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस चिल्ली विंटर। शुरू में इतने कटस लग रहे हैं कि अब बिजली 1 घंटा भी नहीं रहती है 24 घंटे में। ऐसा लोगों ने सोचा कि हम इसमें कोई प्रोटेस्ट करेंगे ताकि सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जाग सके कि कुलगाम का। रफियाबाद बारामूला के रोहमा इलाके में मौजूद वजी नाले से गैर कानूनी तौर से रेत, बजरी और पत्थर निकालने का काम जारी है। इसकी वजह से न सिर्फ माहौलियात पर बुरा असर पड़ने का खदशा है बल्कि मकामी किसान भी तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। मुतासरा किसानों का कहना है कि उन्होंने कई मरतबा मसले को उजागर करने की कोशिश की, ताहम माफिया अपना काम बिला किसी रोक टोक के जारी रखे हुए है। अगरचे मुतल्लिका हुक्काम ने पहले ही दरियाओं और नालों से रेत वगैरह निकालने पर पाबंदी आयद की है, ताहम कई मकामात पर पुलों, सड़कों और काश्त की अराजी के आसपास मादनियात गैर कानूनी तरीके से निकालने का काम जारी है, जिसकी वजह से आम लोग और ख़ास तौर से किसान काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि फौरी तौर इस मसले की जानिब तवज्जो दी जाए। उन जगहों से निकालते हैं इस सैंड को जहाँ से हमें फिर डैमेज का एहतिमाल होता है, ख़तरा होता है। इस सिलसिले में ऑलरेडी मैंने अपनी मेरा जो डिपार्टमेंट है इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, उनको डायरेक्शन पास की है कि जहाँ जहाँ भी ऐसा कुछ ख़तरा लगे कि यहाँ से फिर रेजिडेंशियल एरिया को या सॉइल इरोजन का ख़तरा है,
वहाँ उन जगहों पर वो अलाउ नहीं कर दे। जैसे आपने पॉइंट आउट किया, ये इलाका जहाँ पर ये जो उनकी ज़राई ज़मीन है उनको खतरा है, मैं कल ही इसमें कार्रवाई करके वहाँ से जो एक्सट्रैक्शन हो रही है गलत तरीके से उसको रोक दे दूँगा। गरमाई राजधानी श्रीनगर में गुज़श्ता रात मौसम की सबसे सर्द तरीन रात रही। रात का दर्जे हरारत -7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि गुज़श्ता कई सालों में सबसे कम है। दर्जे हरारत में लगातार कमी की वजह से शहर श्रीनगर शदीद ठंड की लपेट में आ गया है। नदी नालों के साथ साथ नलों में पानी जम गया था, जिसकी वजह से सुबह के औकात में कई इलाकों में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। उधर दुनिया के दूसरा सर्द तरीन मकाम द्रास में रात के दौरान -20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। वहीं लेह में रात का दर्ज हरारत -8.4 डिग्री, जबकि करगिल में रात का दर्ज हरारत -16 रिकॉर्ड किया गया। वादी के लोग शदीद सर्द लहर की वजह से ठिठुर रहे हैं। वहीं छोटे बच्चों और बुजुर्गों को रात और सुबह के औकात में घर से बाहर जाने से गुरेज करने की सलाह दी गई है। माइनस में ज़्यादा जाना, कश्मीर में इतना माइनस जाना, तो ये तो हमें पहले लद्दाख में तो सुना था, द्रास में सुना था, बाहर के एरियाओं में फॉरेनर्स में सुना था, लेकिन कश्मीर में इतना माइनस होना और इतना जल्दी होना, भी बर्फ़ भी उतनी नहीं पड़ी है, तो वो सब चीज़ें लोगों को दुख दे रही है। बस बहुत ही मुश्किलात उससे होता है। सबसे पहले तो पावर की, पानी की, रात को नल का सब जाम जाता है, पूरा जाम जाता है। थोड़ा जो एज होता है 40 से ऊपर बाहर नहीं निकलता है, वो घबराता है, इतना सर्दी है। मैंने बचपन से आज पहली दफ़ा इस सर्दी मौसम में इतना सर्दी महसूस किया। इस बार चलाई कलान ने सर्दी के पिछले 40 साल के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। श्रीनगर शहर में कल की रात सबसे सख्त तरीन रात दर्ज की गई है। कल रात का टेम्परेचर -7.6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया। दूसरी ओर द्रास की बात करें तो -20 वहाँ पे रात का टेम्परेचर रहता है। ऐसे में महकमा मौसमियात की माने तो आने वाले दिनों में यानी 31 दिसंबर तक मौसम ऐसा ही रहने के इम्कान है। ताहम पहली और दूसरी जनवरी को हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी होने के इम्कान है। फिरोजवानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। लावड़ा यानी लेग्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से श्रीनगर के सैयद कॉलोनी, निशात, ऋषि मोहल्ला, जोगी लंगर, रैनावारी, NIT के नज़दीक नगीन, हबक और दीगर मुल्हिका इलाकों में कई कानूनी तामीराती ढांचे, गैर कानूनी तामीराती ढांचे और टीन के शेड्स को मुनहदम किया गया। लावड़ा के ओहदेदारों का कहना है कि कुछ अनासिर हड़तालों और बंदिशों का फायदा उठाकर गैर कानूनी तामीरात खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि लावड़ा डल झील के आतराफ गैर कानूनी तौर पर बनाए गए हट्स समेत उसकी तरह के तमाम गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम करेंगे। उनका कहना था कि इन नाजायज तामीरात को हाई कोर्ट की हिदायत पर मुनहदिम किया जा रहा है। कुपवाड़ा जिले में बिजली बहरान के हल के लिए मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू तो किया गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की तामीर में ताखीर से लोग परेशान हैं। लोगों ने जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। पेश की रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिले में बिजली की किल्लत का बहरान हर गुजरते दिन के साथ वसी होता जा रहा है। दर्जनों देहात बिजली सप्लाई से महरूम है, जिसकी वजह से आबादी का बड़ा हिस्सा मुश्किलात से दो-चार है। और ऐसे में जिले में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए जिले भर के 4 नदी नालों पर मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तामीर करने का ऐलान किया गया, लेकिन अभी तक इन पावर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू नहीं किया जा रहा। चौकीबल में 10 मेगावाट, मावर में 10 मेगावाट और दूसरा 4.5 मेगावाट, करना द्रंगला 10 मेगावाट और चौकीबल में भी 10 मेगावाट वाले प्रोजेक्ट मंजूर किए गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे की जानिब से ये प्रोजेक्ट तामीर किए जा रहे हैं, जबकि लौलाब में PDC के जेर असर एक मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट की तामीर की जा रही है। लोगों का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए अगरचे कई जगहों पर टेंडर जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद काम शुरू नहीं किया गया और ऐसे में कई एक प्रोजेक्ट्स पर अभी टेंडर तक जारी नहीं किए गए। इस ताखीर पर लोग बेहद मायूस नजर आ रहे हैं। लोगों ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि अगर इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया जाता तो लोगों को आने वाले वक्तों में अंधेरे से निजात मिल सकती थी। इनका कहना है कि मौसम सरमा में जिले भर में बिजली की किल्लत का बहरान
गहराता जा रहा है, संगीन होता जा रहा है। लिहाजा इन मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए इनकी उम्मीद बन चुकी थी कि ऐसा होने से जिले में मजमूई तौर पर बिजली का मसला हल हो जाएगा। मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्टों की मंजूरी मरकज की तरफ से आई है, उन पर अभी काम शुरू नहीं हो रहा है। हम यही इल्तिजा करते हैं, गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से, कि उन पर जल्दी काम शुरू किया जाए ताकि जो बिजली के हवाले से हमारे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट को प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक हल हो जाएगी। जो टंगडार के लिए एक मावर लंगेट में है, एक चौकीबल में है और एक लोलाब में है, अगर उन पर काम शुरू किया जाता तो हमें जो मुश्किलात है बिजली के हवाले से वो बहुत हद तक कम हो जाते। लिहाजा हमारी यही गुजारिश है गवर्नर साहब से, डीसी कुपवारा, डिविजनल कमिश्नर साहब से और तमाम जो आला हुकाम है उनको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। 1 साल पहले इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने हैं टंगडार, केरन, मच्छल, तो लेकिन अभी तक कहीं भी नाम निशान नहीं है। बस सिर्फ हमें ये सियासतदान गए वहाँ पे तसल्ली दी, आज बन रहा है, कल बन रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी काम उस पर नहीं लगा है। और हमें बहुत ज़्यादा बिजली की, खासकर केरन से 1-3 घंटा बिजली आती है, हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, कोई एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाता है, इसी वजह से ना पावर है वहाँ पे। हमारे सामने लीलम है, उसमें बड़ी इतना खूबसूरत लग रहा है, 24 घंटे पावर रहता है, लेकिन हम पावर के लिए तरस रहे हैं। लोगों का इल्जाम है कि महज ऐलानात ही किए जा रहे हैं, अमली तौर पर इससे कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से बिजली का बहरान मजीद संगीन हो गया है। हम गवर्नर इंतजामिया को अपील कर रहे हैं, यहाँ जो पावर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट यहाँ मतलब गवर्नमेंट ने बताए दिए हैं कि इन पे कुछ टेंडरिंग भी हो चुकी है, लेकिन अभी काम नहीं लगा है उनमें, जिसमें मतलब मच्छल का कोई प्रोजेक्ट है मूरी नाले में जो लगने वाला था, या बाकी जो प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन अभी तक उनमें काम नहीं लगा है। बाकी जो लोलाब वादी है, पूरी लोलाब वादी, ये बिजली में काफ़ी सफ़र कर रही है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, हमें मुश्किल से गुजारा करना पड़ता है। अब केरोसिन भी नहीं मिल रहा है जिससे हम कम से कम ये रोशनी देख सकते, मतलब जला सकते थे गर्मियों में। अब केरोसिन भी नायाब है। अब हम काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। अब हम गवर्नर इंतजामिया को अपील कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इससे जल्द अज जल्द मतलब काम करवाए। गुजारिश कर डीसी साहब, डीसी कुपवारा, डिविजनल कमिश्नर, गवर्नर साहबस इमन पे जल्दी से जल्दी काम शुरू कर। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने कहा कि इन प्रोजेक्ट से मुतालिक टेंडरिंग का मरहला पूरा हो चुका है। अब इन पर काम शुरू होने से लोगों को फायदा मिल सकता है और इसमें वो जाती तौर पर अपनी दिलचस्पी लेंगे। गवर्नमेंट को मुख्तलिफ सेक्टर्स में पैकेज मिला था, तो ये पावर के लिए भी जो है मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए ज़िला कुपवारा में भी, जैसे हमारा टंगडार का जो प्रोजेक्ट है, ये सारे जो है मुख्तलिफ स्टेजेस पे हैं। टंगडार वाला जो है उसकी लैंड एक्विजिशन भी हो चुकी है, द्रिंगला का प्रोजेक्ट, और उसमें जो है वो अब टेंडरिंग भी हो चुकी है, तो अवार्ड होने की स्टेज पे है। वो जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो टेंडरिंग कर रही है। इसी तरह बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी मुख्तलिफ मरहलों में है। कोई जो है वो फिजिबिलिटी स्टडी के स्टेज पे है, किसी का सर्वे हो रहा है। तो ये प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारे ज़िले के लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे। उम्मीद है कि बिजली बहरान के हल के लिए इंतजामिया जल्द ही हरकत में आ जाएगा और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए संजीदा इक़दाम उठाए जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवारा से याहिया सुल्तान की रिपोर्ट। मारूफ उर्दू शायर और अदीब व नक्काद प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी को आज सुपुर्द लहद कर दिया गया। श्रीनगर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह में ही उनकी तदफीन की गई। प्रोफेसर हामिदी 86 बरस के थे और तवील मुद्दत से बीमार थे। प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी को उर्दू ज़बान की बेशकीमत खिदमात के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड के साथ साथ पद्मश्री, गालिब अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। बुलंदियों के ख्वाब गालिब के तख्लीकी सरचश्मे उर्दू नज़्म की दरियाफ्त के अलावा तकरीबन 50 किताबों के भी वो मुसन्निफ थे। वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके थे। मुतादिद समाजी और अदबी शख्सियात ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत और रंज का इजहार किया है। चाहने वाले पूरी वादी में क्या बल्कि पूरे मुल्क में जितने इनके चाहने वाले हैं, शायद किसी और टीचर के जिसने उर्दू अदब, शेर अदब के हवाले से काम किया हो, किसी और के रहे हो। अल्लाह मग़फ़िरत करे। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी एक अमानत होती है और जितनी इनको ज़िंदगी मिली इन्होंने उसकी अमानतदारी की और हमेशा ही काम करते रहे।
अल्लाह मगफिरत करे। किस तरीके से उन्होंने टर्मोइल में, हालात इतने ख़राब थे उन दिनों, किस तरीके से उन्होंने ये अपनी कुर्सी को सही तरीके से इस्तेमाल करके हालात पर काबू पाकर यूनिवर्सिटी को चलाया, किस तरीके से चलाया, वो हामिदी साहब का ही तुर्रा इम्तियाज़ है। कोई और मेरे ख्याल में उन हालात में यूनिवर्सिटी को नहीं चला सकता था। उनकी बस हम दुआ करेंगे अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे और खुल्द बरीन में अता करे। बस उनका इंतकाल हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान है, एक बड़ा ही एक वैक्यूम पैदा हो गया है जिसको बड़ी ही मुश्किल से पूरा किया जा सकेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको जवार रहमत में जगह दे, उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। इनके अंदर जो शफकत मैंने देखी है, मतलब मुझको अपना बेटा मान के समझते थे और बिल्कुल बाप वाली शफकत मेरे लिए इन्होंने हमेशा रखी। और मेरे लिए नहीं, मुझे लगता सबके साथ ये ऐसे ही थे। और जब वाइस चांसलर थे तब भी ये लगता नहीं था कि वाइस चांसलर हैं। एक बाप, एक बड़ा भाई, सबके लिए वैसे थे। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और बहुत देर तक इसकी वो कमी पूरी नहीं हो पाएगी। उर्दू के नामवर शायर, अफसाना निगार, नावल निगार और नजरिया साज नक्काद प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज जम्मू में भी एक ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। रियासती कल्चरल अकेडमी के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़्क़दा इस ताज़ियती मजलिस में काफ़ी तादाद में अदबी शख्सियात के अलावा बाकी लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी अदब के तई खिदमात को उजागर करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। मुक़र्रिरीन ने हामिदी कश्मीरी की वफ़ात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनकी वफ़ात से अदबी दुनिया में एक खला पैदा हुआ है जो पुर करना काफ़ी मुश्किल है। हामिदी साहब कश्मीर के, कश्मीरियों के, कश्मीरी अदब के एक नुमाइंदा रहे हैं। 20वीं सदी और 21वीं सदी के कुछ इब्तिदा में वो पूरी उर्दू दुनिया पे छाए रहे। उस तौर पे जो उनका इक्तिशाफी तनकीद के हवाले से उनकी जो सोच थी, उनकी जो एक नई जहत उन्होंने सामने रख दी, वो उर्दू के लिए एक बुनियाद बन के रह गई है। उन्होंने इक्तिशाफी तनकीद का जो एक नया सिलसिला शुरू किया वो एक मकतब फ़िक्र बन गया तनकीद में, और इस स्कूल ऑफ थाट को बहुत सारे नक़ादों ने, बहुत सारे अदीबों ने, बहुत सारे दानिश्वरों ने न सिर्फ अडॉप्ट किया बल्कि पसंद भी किया। राजौरी के मंजाकोट में एक वीडियो कोच गाड़ी सड़क से लुढ़ककर हादसे का शिकार हो गई। इसमें 17 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इन्हें राजौरी के जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक जख्मी शख्स का इस मौके पर कहना था कि गाड़ी का ड्राइवर तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा है। वहीं न्यूज़ 18 से बात करते हुए अस्पताल हुकाम ने बताया कि तमाम जख्मी अफराद खतरे से बाहर हैं। 5 मिनट के अंदर गाड़ी वाले ने एक्सीडेंट कर दिया और इतने तेज रफ्तार से चलता था कि इतना देख रहे थे कि जहाज हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, इतने तेज रफ्तार से आ रहा था। और इसके आवाज़ दिया कि गाड़ी को रोको, हम उतरेंगे, लेकिन इसने सुना नहीं है। लेकिन सिर्फ ट्रैफिक वालों का कसूर है, ये पैसे ले तो छोड़ देते हैं इनको। एक दो बच्चे हैं जो थोड़े सीरियस लग रहे हैं, 1-2 फ्रैक्चर हैं। तो अभी मतलब कि सब जो है पेशेंट जो जितने भी जो अभी तक आए हैं उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है। 1-2 पेशेंट है जिनकी थोड़ा कंडीशन ठीक नहीं है, मे भी हो सकता है उनको हम आगे भेज सकते हैं, पर अभी वो उनकी कंडीशन स्टेबल ही है। अभी देखते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने डोडा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के तामीरी काम का जायजा लिया। इससे कबल के विजय कुमार ने ओल्ड डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डोडा का भी दौरा किया। यहां उस वक्त अगले साल के लिए मेडिकल क्लासेस शुरू करने के लिए जरूरी लवाजमात पूरे किए जा रहे हैं। एनसी लीडर गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बर्फबारी से मुतासरा मेवा काश्तकारों के केसीसी कर्जजात को माफ किया जाए। मीर ने पुलवामा में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से मुतासरा काश्तकारों को फराहम किया जा रहा मुआवजा माकूल नहीं है, जबकि नुकसान की भरपाई सिर्फ केसीसी कर्ज से माफ करने से होगी। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन ने श्रीनगर की प्रताप पार्क में जमा होकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद एक तो उन्हें दूर दराज इलाकों में तैनात किया जाता है और फिर कुछ मुद्दत के बाद हटा दिया जाता है।
एहतजाजी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स ने गवर्नर इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया कि उनकी तैनाती मुस्तकिल की जाए। मनफी दर्जा हरारत और सख्त सर्दी के बायस वस्ती कश्मीर के बेरवा घाग और खान साहब इलाकों में पानी फराहम करने वाली पाइप्स और नल मुंजमद हो गए हैं। लोग पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हो गए हैं। लोग पानी की सप्लाई बहाल करने की कोशिश करते हैं, ताहम इससे पाइप्स को काफी नुकसान पहुंचता है। उधर महकमे PHE के एक आला ओहदेदार ने न्यूज 18 को फोन पर बताया कि ये एक संगीन मसला है और महकमा इस सूरत हाल से निमटने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। डोराघाट के चंद लोगों ने शिकायत की है कि हुकूमत ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तामीर के लिए उनसे अराजी हासिल की, जिसका मुआवजा उन्हें आज तक नहीं दिया गया। इन लोगों का कहना है कि हुकूमत ने इनसे हर घर में एक फर्द को नौकरी फराहम करने का वादा किया था, ताहम वो वादा पूरा नहीं किया गया। MLC फिरदौस अहमद टाक ने नागसैनी किश्तवाड़ का दौरा किया। इन्होंने पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि PDP रियासत में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। इस मौके पर NC और BJP के कई वर्करों ने PDP में शमूलियत इख्तियार की। टाउन हॉल पामपुर में आज म्यूनिसिपल इलेक्शन में चुने गए 5 कामयाब उम्मीदवारों की एक कमेटी तश्कील दी गई। बंसीलाल भट्ट को चेयरमैन मुंतखब किया गया, जबकि जरीना अख्तर को वाइस चेयरमैन बनाया गया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनिसिपल कमेटी पामपुर की निगरानी में चेयरमैन को ओहदे का हलफ दिलाया गया।